Am I audible, guys? Yes, ma'am. Okay. Is my screen presentation visible? Yes, ma'am. Okay. Okay, guys. So, as everybody knows, that today is the last class for this course. So, yeah. So, today I'll be like in our previous classes we talked about research, like we talked about what is research, but here I'll be just discussing about what are the types of research, like how, like you know how to do a research and you know what is a research. Here we'll be discussing about the two major types of research and what are the sources of that research, and basically the characteristics and the difference between both of them. Okay, so today the today's session would be on that, and then at the last you can ask me whatever questions you have related to this today's session or in total about the whole course or session. Okay, so I'll be starting. And I hope all the only one session video will, I guess, is not available, uh, and बाकी सारे sessions का तो available है, right? You guys checked ना, सब बाकी चीजें available है? Yes, ma'am. Okay, cool. So more people are joining. Let me just wait for 2 more minutes. Are you saying something? Are you saying something? Okay. How to search record session? I didn't get your question. What do you mean by how to search record sessions? I mean, if you go to the course, like every in the whole, like the course, na, वहाँ पे day one, day two, day three होगा. So in that, if you click it, your recording would be visible. You just have to click on the recording. Should I show it to you guys? Do you want me to show it? Yes, ma'am. Okay. To start a new course, Bharati, I'm not understanding. What do you mean by to start a new course by you? Actually, ma'am, I want to write both of the messages with together, but due to some my issue, I send this messages in two steps. Actually, I want to ask: is it possible to start a new course with you? New course as in New course. you want me to give, Uh, like, can you brief me? I'm not able to understand. Actually, our this session, this is the last class, Yes, right, ma'am? yes, yes, So it's our means our one course has been completed yes, particularly yes. on a particular topic. Huh. So we want a new topic and new classes with you. Okay, with me, yeah, definitely. See, Abhi, the problem is I'm an LLM student now, so I have my exams also. So I have Okay, my okay. exams as of now. So when I complete my exams, I'll talk with Tushar and the legitimate team. And when I complete my exam and when I am free, then definitely I can start some new course with you. Okay, but you have to tell me. Okay, I don't know which area of law you want. Like everybody wants, so you can just tell me which area of law you guys want me to teach, and then I can see as per my requirements and my things if it is all there. Okay, ma'am.
महक गुप्ता, आप यार ट्यूशन तो मैं नहीं देती हूँ वैसे, बट इफ यू गाइज वांट आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट इट, अगर आप चाहते हो तो। बट लेट्स सी, अभी देखो, अभी तो ये कोर्स है, इसके बाद जैसे मैंने भी बोला, आई हैव माई एग्जाम्स एंड ऑल, सो वो उसके बाद इट विल डिपेंड ऑन माई अवेलेबिलिटी कि क्या सीन है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, जो भी, आप लोग मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हो, या ऑन माई लिंक्डइन और यूट्यूब एंड ऑल, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर एंड आस्क मी क्वेश्चंस, राइट? सो ये अभी हम थोड़ा लेटली इसके लाइक ये क्लास के बाद बात करते हैं, अभी जो लास्ट क्लास है वो कर लेते हैं, ठीक है? Okay, so here I am talking about research. So see, the thing is, research के ना दो types होते हैं, एक होता है doctrinal research और एक होता है empirical research. Okay, ये this is important for you guys to know the difference between a doctrinal and empirical. Okay, because क्या है कि अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले तो सब लोग वीडियो ऑन कर लो यार, आखिरी दिन है, अब तो शर्म कर लो थोड़ा। कम ऑन, स्विच ऑन योर वीडियोस। कैन एवरीबडी स्विच ऑन द वीडियो यार, थोड़ी शर्म कर लो यार, कम ऑन गाइस, टुडे इज द लास्ट क्लास दैट आई एम टीचिंग, आज तो मेहरबानी। आई कैन जस्ट सी लाइक वन पर्सन, आई कैन जस्ट सी भारती, आई कैन नॉट सी एनीबडी एल्स। क्या वॉशरूम में हो क्या गाइस आप लोग? आर यू गाइस टेकिंग योर कोर्सेज फ्रॉम वॉशरूम, और यू नो, आर यू गाइस इन मार्केट और मेट्रो और समवेयर? आई एम नॉट गोइंग टू टीच टिल द टाइम पीपल ओपन द वीडियो। आई हैव टाइम, देख लो, मेरे पास तो टाइम है, तुम लोगों के पास ही नहीं है। नहीं मीरा, देखो आज तो लास्ट डे है यार, आज तो शर्म नहीं होनी चाहिए। कम ऑन, कम ऑन, स्टार्ट ओपनिंग योर वीडियो गाइज, आई विल नॉट टीच टिल द टाइम, आज तो लास्ट डे है। अब क्या मैं एक एक नाम लूं क्या लोगों के, तब ऑन होंगे? आई हैव ऑल्सो बीन अ लॉ स्टूडेंट गाइज, मेरे साथ ट्रिक नहीं चलेगी। Okay, many have been on, why can't I see then? Okay, layout, I'll change the layout, wait. Layout, I should go. I'm traveling in bus. Okay, okay, that's okay. But like other people have to switch on the video, guys. Yes, now I can see. I can see three, four people. Out of 36, चार लोगों ने खोला है, मतलब I have no words, guys. यार इतना बोरिंग पढ़ा रही हूँ क्या? I want to know, is it so boring? Am I not a good? मैम बहुत अमेजिंग। तो फिर क्यों नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What am I boring? I'm teaching you No, boring. ma'am. No, ma'am. I'm replying to Bharti. Okay, okay. But come on, people, switch on the video. Now I have to start calling out names then. ठीक है. I can see only Bharti. I can see Surya, and where are the others people? I can see Priya and I can see Varsha. I can see where are others guys? Where is Purnima? प्रीतम, अब तो नाम ही बुलाऊंगी मैं, अब तो नहीं सुधरोगे तुम लोग, है ना? इतना टाइम दे दिया मैंने। अच्छा मीरा, यूर ऑल्सो, योर्स इज ऑन। एक सेकेंड यार, सॉरी, बुरा मत मानो, वेट। अच्छा, ओके। आयुषी ऑन द वे टू हॉस्टल, अच्छा यार, कोई नहीं। Present, madam. आई कांट सी वीडियो ऑन। Pante, madam. हाँ हाँ, अंजुलिका, यार आई कांट सी यू अंजुलिका, एक सेकेंड।
Yeah, you are traveling, Preetham. Okay. Sneha, yes, I can see you, Sneha. Okay, guys, थोड़े लोग तो हैं, so now I'm starting. Thank you so much. बड़ा अच्छा लगा. So today, basically जैसे मैंने बताया था, we'll be talking about doctrinal and empirical research. ठीक है, वैसे normally अगर आप देखो तो it's also known as doctrinal and non-doctrinal. Empirical को हम non-doctrinal भी बोलते हैं. ठीक है. So these are the two kind of guys. Please, everybody can mute yourself. Yeah, thank you. Yeah, so basically ये जो these are the two kind of research. So you know this is very important when you Ma'am, still your voice is not audible. my voice is not on. Your voice. Yes, ma'am. Can everybody hear me, guys? Yes, ma'am, you Yes, are ma'am. totally audible. Okay, and Yes, okay. there is some network issue. Can you just rejoin or refresh? Okay, ma'am. Okay, one second, guys. What are you doing? Okay. That she was able to hear. Yeah. Was good. Yeah, Question yeah. that. It's okay. Now, okay. Yeah, guys. My videos are, yeah. So basically I was saying doctrinal and empirical, which is empirical is also known as non-doctrinal. So now you might ask me, why is this important? है ना, इतना टाइम तो हमने रिसर्च का करा, उस टाइम पे तो नहीं बात करी. देखो, बिकॉज वही बात है कि if anybody wants to write a dissertation और रिसर्च पेपर, तो हमको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रिसर्च करना है. ठीक है, मैंने आपको जैसे सोर्सेज बताए थे ना, मैं आई टोल्ड यू देयर आर स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, केस लॉज, books, textbooks, you know, these are the sources of research. But अब for example there is this topic, you as per the topic that you are selecting, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च करना है. तो उस टाइप के लिए यहाँ पे आता है डॉक्ट्रिनल एंड एम्पेरिकल. तो डॉक्ट्रिनल बेसिकली से जो स्लाइड में लिखा है वो ये है कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च आस्क व्हाट द लॉ इज ऑन अ पर्टिकुलर इशू. It is concerned with the analysis of the legal doctrine and how it has been developed and applied. The topics involved in such research are limited or restricted, and focal point of most of them is on nature of law. So देखो basically what is a doctrinal research? तो doctrinal research होता है वो theoretical होता है, ठीक है, और वो pure होता है, वो एकदम pure and theoretical होता है, basically on facts. जो हम अगर टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं, हम केस लॉज ले रहे हैं, स्टैट्यूट्स ले रहे हैं, एक्ट्स ले रहे हैं, लेजिस्लेशन ले रहे हैं, ये सब हो गया थियोरेटिकल, राइट, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है ये सारी चीजें. तो देयर वुड डॉक्ट्रिनल वुड बी अप्लाइड देयर. ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉपर डॉक्ट्रिनल रिसर्च. जो हमारी जो थ्योरीज होती है, जो हमारा एक लॉ अगर आप ले लो, कोई भी सब्सटैंशियल लॉ ले लो, जैसे बीट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी ले लो, तो वो जो लॉ है ना उसके पीछे थ्योरीज होंगी, राइट. जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर एक इंसिडेंट के पीछे देयर इज सम रीजनिंग कि वो क्यों है, वॉर हुआ तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, राइट. तो वैसे ही हमारा लॉ भी है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोई क्रिमिनल लॉ है, तो जो पर्टिकुलर थियोरीज है, तो उसके जो लॉज है उसके पीछे की थियोरीज क्या है, तो वो दैट वुड कम अंडर डॉक्ट्रिनल रिसर्च. ओके, so now if you are for example like I was saying, I wrote a paper on that rape law, right. तो then उसमें जो 1 second, people are joining again. हाँ, तो उसमें जो रेप लॉ का मैंने जो लिया था, तो देयर मस्ट बी द बेर एक्ट में तो ओके 375 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट रेप लॉ, राइट. बट देन देयर विल बी मोर थ्योरीज ऑन रेप लॉ एज वेल, राइट. एंड ऑल्सो जैसे टॉर्ट्स हो गया, या मतलब कुछ भी आप कोई भी लॉ ले लो ना, तो डॉक्ट्रिनल तब होगा जब हम सोर्सेस लेते हैं ना, जैसे टेक्स्ट बुक लेते हैं, हमने एक्ट्स ले लिए, हमने इंटरप्रिटेशंस ले लिए. आईओएस, अगर आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव आईओएस इन योर semester as of now or not, but eventually you will be studying interpretation of statutes. ठीक है, that is a very important subject in law school. क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना जॉब के लिए, या बाहर आप जब ग्रेजुएट हो गए, तो बेसिक काम जो होता है ना इन अ जॉब इज टू इंटरप्रेट योर स्टैट्यूट्स, राइट. हमारे पास बेयर एक्ट वगैरह तो रहती है, बट हाउ डू यू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तभी हमारा हाउ कोर्ट वर्क्स ऑन इंटरप्रिटेशन,
right? Our judicial system works on interpretation of statutes. Our judicial system works on interpretation of law. That is very important. ओके, तो जो डॉक्ट्रिनल है वो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द थियोरीज ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन. जो हमारी लीगल इंटरप्रिटेशन है उसके बिहाइंड की थ्योरी क्या है, उसकी लीगल रीजनिंग क्या है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इन सब के लिए डॉक्ट्रिनल रिसर्च जरूरी रहता है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप पूछ सकते हो कि डॉक्ट्रिनल में काम क्या होता है. तो डॉक्ट्रिनल में काम ये होता है कि जो कोई भी इंसान, जो भी रिसर्चर है, जो रिसर्च करेगा ना, वो कंसेप्ट ऑफ लॉ को एग्जामिन करेगा. वी विल एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, and concept of law के साथ we examine the legal reasoning behind that law. We will examine the legal interpretation behind that law. That is what constitutes a doctrinal research, and that is why this research is known as pure. क्योंकि हम उसकी थ्योरीज के पीछे जा रहे हैं, हम उसके रीजनिंग के पीछे जा रहे हैं, लॉजिक के पीछे जा रहे हैं कि अगर एक थ्योरी है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना. जैसे अब मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्मेटिव थ्योरी, राइट? एंड इफ यू नो कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बेसिकली रेफॉर्मेशन पे ही है. हमारे इंडियन जुडिशियल लॉ में होता है कि यू नो वी बिलीव इन रेफॉर्मेशन. क्राइम पे भी ऑब्वियसली वी आर फोकस्ड, बट वी आर फोकस्ड मोर ऑन द रेफॉर्मेशन ऑफ द अक्यूज्ड. तो दैट इज वाई देर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे इवन दो जेल वेल मतलब दे आर अरेस्टेड एंड ऑल, बट देन देर इज सम रिमांड ऑल्सो. मतलब एज एन एक पीरियड देते हैं ना जहाँ पे देर आर वेर पीपल द सुपरवाइजर जो भी होता है ना, जेलर जो होता है, और वहाँ पे देखते हैं कि हाउ कैन अ पर्सन बी रिफॉर्म्ड. तो इसीलिए व्हेन अ पनिशमेंट इज गिवन तो वो बहुत सोच समझ के देते हैं. जो भी जज होता है ना, दे सी द फुल सैनिटी ऑफ द पर्सन. वो पर्सन कितना सेन है. अगर आप देखो निर्भया देखते हो तो इफ यू वुड आई गेस इफ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, यू वुड हैव सीन अ वीडियो दैट इज गोइंग वायरल. ठीक है, एक वीडियो बहुत वायरल जा रही है. वो एक जो निर्भया का जो अक्यूज था उसकी वीडियो वायरल जा रही है, वेयर ही इज that was, I guess, I don't know which year it was the video was taken. Some person interviewed him where he had said that उससे पूछा गया था कि आपने क्यों रेप करा है. ठीक है, आपको क्या कोई रिमोर्स है, ये सब उससे पूछा गया था. तो उसका उसमें आंसर था कि लड़कियों की दैट गर्ल निर्भया जो भी है, दैट वाज लाइक शी वाज आउटसाइड एट 9 o'clock और समथिंग एट नाइट, राइट? तो उस बंदे का जो वीडियो है वो ये बोलता है कि आई वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू सच गर्ल्स, बिकॉज जो लड़कियां 9 बजे से बाहर 9 बजे से ज्यादा बाहर रहती हैं, वो लड़कियां सही नहीं होती हैं. ठीक है, वो लड़कियां सही नहीं होती हैं. एंड he didn't have any remorse, he didn't have any regret of what he had done. Okay, and that is like, that's the mindset of rapist. क्योंकि उनको अभी भी देख लो, कोलकाता वाला भी देख लो, उसमें भी मेरे को नहीं लगता दैट गाय हैज एनी रिमोर्स ओवर दैट फैक्ट. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर, इज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. इतना ज्यादा उनका ऐसा माइंडसेट रहता है. तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हम फिर भी वी ट्राई कि हम कितना उसको वी कैन रिफॉर्म देम, राइट? सो दैट इज वाई जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है ना, उसके पीछे का लोग लाइक इंडियन लॉ, they try to see the legal reasoning and the logic behind that. यार अब ये तो पॉलिटिकल हो गया. महक, व्हाट आर योर थॉट्स? मेरे को तो कोई थॉट्स ही नहीं है मेरे को सीरियसली ऑन ममता बनर्जी. आई एम स्पीचलेस. आई हैव नो थॉट्स ऑन हर, नथिंग. आई हैव लिटरली, बिकॉज वॉट एवर, आई डोंट नो. बिफोर दिस कोलकाता केस जितना भी मैंने पढ़ा था, कोलकाता वो सपोज टू बी द लेस लाइक सबसे कम क्राइम रेट होता था जितना मेरे स्टैटिस्टिकल, अगर आप देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, ऐसे मैंने देखा था कि कोलकाता में कम क्राइम्स कम होते हैं. बट सी द रियलिटी, right? And the fact is, if these the doctors would not have protested, no, तो ये केस को दबा देते बहुत आराम से. ठीक है, तो it is because of that protest, it is because of all that vandalism whatever happened, and people stood up for it. That is why it is gone to CBI, and that is why it is Supreme Court's hearing is done. Because अगर आप फॉलो कर रहे हो केस को तो आपको पता होगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारे डॉक्टर सॉरी CGI Chandrachud. चंद्रचूड, he also said that he is shocked at the way the case was handled, because it was
जो लड़की थी उनकी जो सॉरी डिसीज्ड है, उनका बॉडी बहुत लेट दिया गया उनके पेरेंट्स को, एंड देन एफआईआर बहुत लेट फाइल हुई. ओके, and there are a lot of things actually. So the major thing is the government should have taken some responsibility of it. ममता बनर्जी है तो उनको कुछ, आई मीन शी इज अ वुमेन हरसेल्फ. अगर ये चीज उनकी खुद की बेटी के साथ होती या उनके खुद की फैमिली में होती, देन आई मीन तब आपको पता चलता. दैट्स द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज जब तक खुद पे नहीं आती है, खुद के बच्चों पे नहीं आती है, लोगों को समझ नहीं आता है. दे डोंट अंडरस्टैंड द थिंग. उत्तर प्रदेश में मोस्टली होता है पता या यार वही बात है, पूरा इंडिया में. See, you can't see Indian judiciary. The thing is no make judiciary या जो हमारा लॉ है ना, हम एविडेंस पे चलते हैं, ठीक है. एंड इट इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज द हमारा लॉ ही ऐसा बना है कि अब वही बात है कि हम किसी. Please come to the topic. Acha, okay. Sorry, I'll just come to the topic. We'll discuss this after some time. Yeah, so yeah, I was saying about doctrinal research. So basically I was talking about reformative theory, right? Reformative theory का मैं यही बोल रही थी कि the major एनालिसिस जो हमारा होता है, जो लीगल रीजनिंग होती है और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, तो बेसिकली डॉक्ट्रिनल रिसर्च विल टॉक अबाउट what is the concept of law and what is the legal reasoning behind that concept of law and what is the legal interpretation behind that concept of law. वहीं से आप अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो. कोई भी टॉपिक अगर लोगे, आप कोई भी टॉपिक लोगे जिसमें आपको आर्टिकल लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है, जो भी लिखना है, सो दैट इज द वे. मोस्ट ऑफ द अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द पेपर्स का जो रिसर्च मेथड होता है ना, दैट इज डॉक्ट्रिनल रिसर्च. ओके, because most of the places they want to write about the theory, they want to write about the theoretical nature, and theoretical nature is the doctrinal research. Okay, देन हियर ये चीज मैंने वैसे पहले भी बताई थी, मैं फिर से बता देती हूँ. दिस इज द बेसिकली सोर्सेज ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च. जैसे हमने पहले बात करी थी कि रिसर्च के क्या सोर्सेज होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और जो बुक्स और वो सब पहले बताया था मैंने. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च. So like I said, see textbook, case laws published by authorized publisher, statute, enactments, acts, वेब पोर्टल्स, वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट में भी कई टाइप ऑफ वेबसाइट होते हैं. एक ऐसा जैसे नॉर्मल वेबसाइट है, अगर आप जाओगे तो यू हैव दैट. देन देयर इज अ ब्लॉग वेबसाइट. ओके, देन देयर इज अ वेबसाइट जो जिसमें पीडीएफ अवेलेबल हो. ओके, मतलब जो वो पीडीएफ वाला वेबसाइट होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट ऑल्सो. ओके, then you have reports of committee, legal reports. Okay, then you have history, you have judgments, you have commentaries. So ये सारे जो होते हैं ना, ये हो गया doctrinal research. ठीक है, अब इस can you guys spot some जैसे अगर आप देखो doctrinal research जो है, इसमें क्या मिसिंग है, कुछ कोई बता सकता है आपको क्या लग रहा है इसमें? हमने पहले भी बात करी थी सोर्सेज की, राइट? आई टोल्ड यू अबाउट अ लॉट ऑफ सोर्सेज, about the sources of research. So what is can you guys like spot some difference? क्या difference है? What is the difference here? Like there is just यहाँ पे we are talking about case laws, we are talking about enactments, we are talking about reports. ठीक है, तो अगर एक रिसर्च है तो एक रिसर्च में ये सब चीजें तो है, और क्या हो सकता है? What is there something missing? Preetham, can you mute yourself? So guys, what is missing here? Ma'am, can it be opinions? Yes, opinions. And like what else? Like जैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ. जैसे अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो ना देर आर टू टाइप्स. जैसे मैंने बताया था ना, एक तो डॉक्ट्रिनल है, तो जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम. या सी आई हैव मेंशन कमेंट्रीज में, तो लीगल कमेंट्रीज उसी में आ जाएगा. what else? What do you think about surveys? Is survey a part of research? क्या हम Yes, ma'am. सर्वेज को इंक्लूड कर सकते हैं? Yes, ma'am. Statics data, survey report. Yeah, so
विल इट कम अंडर डॉक्ट्रिनल? व्हाट यू गाइस थिंक? सर्वे जो होता है, क्या वो डॉक्ट्रिनल में आता है? सर्वेज, जो ये क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, एंड अगर आपने शायद पढ़ा होगा पार्टिसिपेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, है ना, ये सब. तो what do you think? Does it come under doctrinal or it will come under empirical? Empirical. Yes. And somebody else? Priya is saying empirical. Ma'am, empirical. Okay. Ma'am, because this Yes, depends on ma'am. nature of law. Okay. And like some other reason, why do you think it's under empirical? Bharti, you want to take? Because they have not, yes, ma'am, yes, ma'am. Yes. Because they have not any theory. Okay. Okay. ठीक है. तो द थिंग इज, जो सर्वेस क्वेश्चन है, आई इन द अपकमिंग स्लाइड आई टॉक अबाउट. सो दीज कम अंडर एम्पेरिकल. जैसे मैंने बोला था ना, डॉक्ट्रिनल जो होता है इट इज ऑन थियोरीज ऑफ लॉ, है ना. डॉक्ट्रिनल में होता है कि हम उसका लीगल रीजनिंग ढूंढ रहे हैं. जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है उसके पीछे का थ्योरी क्या है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, उसके पीछे का इंटरप्रिटेशन क्या है. अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, राइट. सर्वे में ये होगा कि यू हैव फाइंडिंग्स फॉर दैट. सर्वे इज बेसिकली फाइंडिंग हो गया. इंटरव्यू, क्वेश्चनर, इन सब में हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेप स्टेटिस्टिक्स हो गया, कितने लोग, कितने गर्ल्स रेप हुए हैं. तो उसमें हमारा होता है कि दीज आर द फाइंडिंग्स दैट ओके दीज नंबर ऑफ पीपल इन दिस ईयर, दिस परसेंटेज हैव बीन रेप्ड. That is a proper percentage, so that will be a finding, that will be a क्या बोलते हैं, that will be a data, that will not be a theory. Okay, that will come under empirical. So अगर यहाँ स्लाइड की बात करें तो दिस टॉक्स अबाउट द सोर्सेज ऑफ डॉक्ट्रिनल. उसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, केस लॉ हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, स्टैट्यूट, एक्ट्स, एनैक्टमेंट्स, वेब पोर्टल्स, वेबसाइट, रिपोर्ट्स, लीगल रिपोर्ट्स, हिस्ट्री, जजमेंट, कमेंट्रीज, एवरीथिंग. जो भी हम थ्योरी जहाँ से भी हम ले सकते हैं, जितना सोर्सेज हम ले सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर डॉक्ट्रिनल रिसर्च. ओके गाइज, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे बेसिकली जो डॉक्ट्रिनल, जैसे मैंने बताया था, जो डॉक्ट्रिनल है वो बेस्ड होता है एक लीगल प्रपोजिशन में. ओके, it is based on a legal proposition. Now you guys know, right? I don't need to tell you what a legal proposition is. ये तो पता ही होगा. What is a legal proposition? Can anybody tell me? What do you mean by legal proposition, guys? Can anybody tell me what do you mean by legal proposition, or do I need to tell you? Ma'am, Ma'am, please please tell, tell me. tell me, ma'am. अच्छा, okay. See, this is तो फंडामेंटल बेसिक्स है यार, ये पता होना चाहिए गाइस, लॉ स्टूडेंट हो. बट सी आई टेल यू, बेसिकली लीगल प्रपोजिशन ना एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ असर्शन होता है. जो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन होगा ना, उसमें कोई प्रिंसिपल या कोई रूल या कोई कंक्लूजन ऑफ लॉ होता है. दैट इज अ लीगल प्रपोजिशन. ठीक है. तो गाइज, म्यूट योर सेल्फ गाइज. So basically जो legal proposition है, it is a statement of assertion, okay, that sets forth a principle, a rule or a conclusion of law. ठीक है. बेसिक्स अगर आप जानना चाहते हो तो वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं which will support your argument. ठीक है, like a hypothesis, right? हमारा कोई रिसर्च पेपर है, तो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो हमारा लीगल प्रपोजिशन है, क्योंकि उस हाइपोथेसिस पे पूरा पेपर बेस्ड है. समझ रहे हो? यू वांट मी टू गिव यू एग्जांपल? देन भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, सी दैट रेप वाला पेपर, अगेन आई टेक दैट एग्जांपल ओनली. वो रेप वाले पेपर का हाइपोथेसिस क्या था? वो रेप वाले पेपर का हाइपोथेसिस था कि देयर इज अ मिसयूज ऑफ लॉ. ओके, देयर इज अ मिसयूज ऑफ लॉ बाय विमेन. मेरा जो पेपर था, आई टॉक्ड अबाउट फॉल्स केसेस क्रिपलिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगेंस्ट मेन. Okay, so the basic hypothesis, the basic legal proposition in that is misuse of law by women, misuse of rape law by women. तो ये अगर एक चीज आप देख रहे हो तो यहाँ पे प्रिंसिपल है which is talking about rape law. Okay, there is a law which is rape law. I'm talking about misuse of rape law by women. तो जो मेरा पेपर होगा उसमें obviously in my paper I have given the evidence also that there are a lot of case laws. I have cited case laws
which talks about misuse of rape law by women. Like अगर मैंने पहले भी प्रीवियस सेशन में बताया था कि मैंने एक पर्टिकुलर केस स्टडी ली थी, वो थी विष्णु तिवारी केस. ठीक है, विष्णु तिवारी केस मैंने लिया था, तो दैट बिकम्स अ लीगल प्रपोजिशन कि दैट इज अ हाइपोथेसिस इज माय लीगल प्रपोजिशन. समझ रहे हो? दे आर बेसिकली, इट इज अ स्टेटमेंट विच विल सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, विच विल सपोर्ट योर पोजिशन इन द पेपर. आप जो ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने डेजर्टेशन वगैरह सुना है, तो अब हम जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो ना डेजर्टेशन के लिए, तो यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. तो उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में अगर एज अ सुपरवाइजर आप सोचो, तो एक सुपरवाइजर विल सर्च फॉर द लीगल प्रपोजिशन. What is your main issue that you are talking about in the paper? Because if you see dissertation of 100 pages, it goes around 30,000 words, right? पूरा पेपर कौन पढ़ने वाला है? कोई नहीं पढ़ेगा. तो उनको मेजर चाहिए legal proposition. Is it clear, or should I make you understand more about legal proposition? Yes, ma'am. It is clear now. ओके, जो इम्पोर्टेंट लीगल प्रपोजिशन का है ना, वो बस ये चीज आपको समझना है कि जो लीगल प्रपोजिशन है वो बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन सम स्टैट्यूट, ऑन सम केस लॉ और सम लीगल प्रिंसिपल और सम लीगल डॉक्ट्रिन. ठीक है, तो जो लीगल प्रपोजिशन होता है बेसिक वही है टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अगर आप लिटिगेशन में जाओगे या इफ यू हैव डन सम इंटर्नशिप्स, यू वुड नो लीगल प्रपोजिशन, बिकॉज वहां पे इन द कोर्ट you need a proper legal proposition to support and interpret the law, है ना. तो आप जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो इन द लिटिगेशन और इन द कोर्ट एंड ऑल आर्ग्यूमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, you know, like to obviously in some case you have to prepare yourself ना before you go to a court to argue it. तो वो जो भी arguments आप prepare कर रहे हो अपने केस को support करने के लिए, those are legal propositions. Okay, clear? This is what is a legal proposition. So यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि this the study basically is the, जो भी आप पेपर बना रहे हो वो, that is mainly based on the legal proposition. Doctrinal research is based on the legal proposition. The reason for the decision which is legal, हाँ यहाँ पे मैंने दिया है, मतलब है the reason for the decision which is legally binding and creates precedent, or the statement of assertion which sets forth a principle, rule or a conclusion of law. If you want to note it down, you can. Okay. Then the second is the sources of data for a doctrinal research are the reports of appellate courts and conventional legal theory. Yeah, see वही बात है, यहाँ पे आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द कोर्ट सिस्टम. ठीक है, जो कोर्ट्स में होता है उसका जो डॉक्ट्रिनल रिसर्च का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है appellate courts के reports and legal convention. वही जैसे मैंने आपको बताया था, theories के पीछे का legal reasoning, legal interpretation, वो गया conventional legal theories and appellate courts. अब अगर हम आपकी article research paper की बात करें, तो वहां पे आपका जो major source of doctrinal research है वो हो गया आपके acts, आपके statutes, आपके case laws, आपके टेक्स्ट बुक, मतलब बुक्स, जो भी आप बुक्स रेफर करोगे, that all will come under your sources of doctrinal research. Okay, then third point is it is concerned with what the particular doctrine of law says and not as what made the authority to say or what has been the impact of that say. See basically यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपका लीगल प्रपोजिशन. ओके, तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और दूसरी बात ये है कि आपके जो भी आप पेपर, फॉर एग्जाम्पल यू राइटिंग एनी पेपर, नो, तो यू हैव टू नो विच मेथड ऑफ रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट, whether you want a doctrinal method of research or you want an empirical research. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ पेपर ऑन मे बी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ठीक है, आपने कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में लिखा, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप कैसे दिखाओगे? आपने अपने थियोरीज तो दे दिए कि ठीक है ये थियोरी है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट हो रहा है, बट देयर यू वुड नीड द फाइंडिंग्स, है ना, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप दिखा रहे हो, बट देन हाउ विल यू प्रूव इट? because you will prove it by statistics only na, you will prove it through data कि इतना environmental impact हो रहा है, that data is important, that will be covered under empirical. So it is very necessary for you to know which research you need, doctrinal और empirical. and doctrinal में तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा particular doctrine of law apply होगा. अगर मैं लिख रही हूँ कुछ रेप पे, तो मुझे पता IPC या BNS होगा, राइट, तो वो डॉक्ट्रिन यूज होगा. बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू कैन नॉट यू नो आपने एक टॉपिक ले लिया बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, दैट इज नॉट राइट, है ना. इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि अगर मैं रेप के बारे में लिख रही हूँ तो मेरे को IPC BNS चाहिए होगा, मैं अगर कुछ और लिख रही हूँ, मैं लेबर पे लिख रही हूँ तो मुझे लेबर लॉ चाहिए होगा, है ना, मैं कुछ प्राइवेसी पे लिख रही हूँ तो IT एक्ट चाहिए होगा, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए होगा. तो यू शुड नो विच डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ इज इम्पोर्टेंट. Okay, then comes empirical. Sorry guys. Yeah, so empirical research, देखो मैंने आपको बता दिया है डॉक्ट्रिनल क्या है. Are you guys clear with doctrinal or do I need to again talk about doctrinal? क्लियर. क्लियर. ओके, सो देखो एम्पेरिकल में बेसिकली ये है, एम्पेरिकल इज अ रिसर्च यूजिंग एम्पेरिकल एविडेंस. जहां पे एम्पेरिकल एविडेंस यूज होता है वो होता है एम्पेरिकल रिसर्च. ओके, एक्सक्यूज, या सॉरी. So basically it is a research using empirical evidence. Now इसमें basic slide में अगर आप देखो तो उसमें लिखा है it's a way of gaining knowledge by means of direct and indirect observation or experience, and it can be qualitative or quantitative, and it means relying solely on observation and experiment and not on theory. Like I said before, उल्टा जो हमने पढ़ा डॉक्ट्रिनल का उसका उल्टा होता है एम्पेरिकल. कॉमन नहीं है तो कॉमन सेंस है, ठीक है. जो हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिनल में उसका उल्टा हो गया एम्पेरिकल. डॉक्ट्रिनल में हमने पढ़ा था थियोरी, तो एम्पेरिकल हो गया नॉन थियोरी. नॉन थियोरी वुड बी ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑन फाइंडिंग्स, ठीक है, ऑन डेटा, ऑन स्टेटिस्टिक्स. जहां पे एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, जहां पे स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है, वो हो गया एम्पेरिकल रिसर्च. ठीक है. सी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, जैसे मैंने बोला आपको पता होना चाहिए कौन सा रिसर्च आपको चाहिए. और अगर आप डेजर्ट, क्योंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हो तो मुझे पता है फॉर आई गेस मोस्टली इन योर फाइनल ईयर यू हैव टू राइट अ डेजर्टेशन. Okay, so वहाँ पे they would expect you to know the difference between doctrinal and empirical, and they would expect you to know कि कौन सा research apply होगा. क्योंकि अगर आप dissertation वगैरह लिखते हो ना guys, तो आपको ना वाइवा देना पड़ता है, ठीक है. dissertation में वाइवाज होते हैं, तो वहाँ पे they will definitely ask you about the topic and whatever topic you've chosen, but they will also they'll also question you about the research methodology, because there is a specific chapter on research methodology. Okay, so research methodology में ये सब आएगा, empirical, doctrinal. तो आपको पता होना चाहिए, because अगर आप dissertation वगैरह लिखोगे तो एक सेक्शन होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो उसमें ना आपको लिखना पड़ता है कि आपने कौन सा रिसर्च यूज करा. सो उसमें आपको पता होना चाहिए दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ कोई टॉपिक, तो उसमें आई हैव टू give that okay, I have used the doctrinal mode of research और I have used the empirical mode of research. तो वह कैसे पता चलेगा, जब आपको पता होगा डिफरेंस क्या होता है empirical और doctrinal में और कौन सा आपको यूज करना है. ठीक है. सो बेसिक जो मैंने बताया empirical is not theory, it is on experiment, finding data, statistics. Okay, so empirical research is basically carried out by collection and gathering data or information relating टू योर फर्स्ट हैंड स्टडी. ठीक है. जो भी आपका फाइंडिंग्स है, जो भी आपकी स्टैटिस्टिक्स है, वो आपको कैसे मिलेंगे, जब आप कलेक्ट करोगे, है ना. सर्वे आप कैसे करोगे, सर्वे तभी करोगे जब आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी हो और आपके यू हैव टू गो एंड do the survey ना, you have to go and conduct the survey, you have to go in some particular field. first hand study वही होगा कि आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको बाहर अपने घर से बाहर निकल के फील्ड वर्क में जाना पड़ेगा. दैट वुड बी एम्पेरिकल. घर बैठ के जो चीज हो जाए वो डॉक्ट्रिनल. ठीक है. घर से बाहर निकलोगे तो एम्पेरिकल. ओके, तो बेसिक यहाँ पे आपका डिफरेंस यही हो गया, एम्पेरिकल में फील्ड वर्क चाहिए, डॉक्ट्रिनल में फील्ड वर्क नहीं चाहिए. ओके, नाउ then we are going to the next slide. एक second. Here, research design. So we are talking about the empirical का research design क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला आ गया टाइटल, आ गया, देन आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, फिर आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वेरिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग, कंसेप्चुअलाइजेशन. ठीक है. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मान लो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे टाइटल क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया. ठीक है, वो हमारा टाइटल हो गया. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है. बेसिक हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो यूसीसी है वो कितना फिजिबल है इंडिया में, है ना, यूसीसी कितना एप्लीकेबल है इंडिया में, वो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव. देन हाइपोथेसिस हम ये लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट ओके,
यूनिफॉर्म सिविल कोड विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन इंडियन सोसाइटी. ठीक है, दैट विल बी आर हाइपोथेसिस. हम ये हाइपोथेसिस लिख सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंडिया में पॉजिटिव चेंज लाएगा. दैट विल बी आर हाइपोथेसिस. अब मेथडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा मेथडोलॉजी यूज होगा, वेदर इट इज डॉक्ट्रिनल और इट इज एम्पेरिकल. ठीक है, वो आपको देखना है. अब अगर हम एम्पेरिकल यूज कर रहे हैं तो एम्पेरिकल में कौन सा यूज कर रहे हैं. एम्पेरिकल में अभी लाइक आई इन द नेक्स्ट स्लाइड आई टॉक अबाउट द सोर्सेज. तो एम्पेरिकल में वही क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया. ओके, जहां से भी आप ये ऑब्जर्वेशन हो गया. दीज आर द थिंग्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एम्पेरिकल. तो मेथोडोलॉजी में आ जाएगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं. अब अगर हम यूसीसी ले रहे हैं तो मे बी यूनिफॉर्म सिविल कोड में वी कैन टॉक अबाउट द क्वेश्चन है. यू कैन गिव अ क्वेश्चन है. ठीक है, यू कैन गिव अ क्वेश्चन है टू एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, देखने के लिए कि हाउ फार इज यूनिफॉर्म सिविल कोड फीजिबल इन इंडिया. ठीक है, नाउ ये जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल है, एक्चुअली दिस इज नॉट सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, बट बाद में जब एलएलएम वगैरह करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. सिलेक्शन ऑफ सैंपल में ना बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक होती है. ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द सैम्पलिंग एंड ऑल. दैट इज नॉट नीडेड फॉर यू. बट जस्ट फॉर अ ब्रीफ इफ यू वांट टू नो, बेसिक सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है. वहाँ पे ना देयर आर डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक. अगर आप एम्पेरिकल कर रहे हो ना तो आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स पता होना चाहिए. तो उस बेसिस पे द सैंपल्स आर टेकन. सी बेसिकली वही एम्पेरिकल में यू हैव सर्वे, क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू. इसके लिए सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है. ओके, देयर आर अदर थिंग्स, उसके लिए यू नीड सैम्पलिंग टेक्निक्स. ओके, सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, देन देर इज सोर्सेज ऑफ डेटा. तो सोर्सेज ऑफ डेटा में वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा सोर्स ऑफ डेटा है. सोर्स मतलब प्राइमरी सेकेंडरी. ओके, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी आपको प्राइमरी चाहिए, आपको सेकेंडरी चाहिए, कि आपको दोनों इंक्लूड करके चाहिए. तो वो आपका सोर्सेज ऑफ डेटा हो गया. ठीक है, then is what, then is data collection. Why data collection is also how will you collect data, that is also comes under वही बात है. देखो सिलेक्शन ऑफ डेटा जो है, लाइक डेटा कलेक्शन जो है, और जो आपका सोर्सेज ऑफ डेटा है वो थोड़ा सिमिलर ही है. सो बेसिक डेटा कलेक्शन में यही आ जाएगा. आपका सेकेंडरी सोर्सेज है कि प्राइमरी सोर्सेज है, और उसमें ना डेटा कलेक्शन में यू हैव टू एम्फसाइज ऑन विच काइंड ऑफ डेटा यू आर टेकिंग. ओके, कि आपको क्वेश्चनर चाहिए, आपको इंटरव्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो उसमें आएगा. ओके, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब वही बात है कि अगर आपने क्वालिटेटिव डेटा लिया है या आपने क्वांटिटेटिव डेटा लिया है तो उसका एनालिसिस होगा. ओके, नॉट द थ्योरी ऑफ लॉ. यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ लॉ की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा का एनालाइज कर रहे हैं. राइट, दैट इज यू हैव टू नॉट कंफ्यूज गाइस. ये कंफ्यूज नहीं करना है कि हम थ्योरी को एनालाइज कर रहे हैं. हम थ्योरी को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज कर रहे हैं. ओके, देन वेरिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स. तो इसमें वेरिफिकेशन वही बात है कि आपका जो प्रीवियस, जैसे आपने मे बी आपने एजुकेटेड को दिया, अनएजुकेटेड को दिया, है ना. और यही चीज ऐसे भी यू कैन फाइंड इट लाइक जो प्रीवियस स्टडी हो कोई, है ना, प्रीवियस कोई स्टडी हो, उन्होंने भी अगर दे हैव गिवन इट टू एजुकेटेड अनएजुकेटेड, देन यू कैन कंपेयर दैट. तब होगा वेरीफाई होगा आपका फाइंडिंग. कि मान लो आपने 2016 का एक डेटा है और आपने किया 2021 में. ओके, देन यू कैन सी व्हाट इज द वेरिफिकेशन ऑफ डेटा. 2016 या 2018 में क्या था और अब क्या है. डेफिनेटली देयर इज सम डिफरेंस, है ना, कुछ तो डिफरेंस होगा ही. हमारा इतना डेवलपमेंट हुआ है, वो सब भी है. सो यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. दैट विल बी वेरिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग, विच इज बेसिकली टू वेरीफाई इट. कंपेयर करना जो कहते हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं हम एक को दूसरे से, वो हो गया वेरिफिकेशन. ओके, देन आता है लास्ट इज कंसेप्चुलाइजेशन. कंसेप्चुलाइजेशन में वही है कि आपका जो आपने जो फाइंडिंग्स करी है उसको आप कंसेप्चुलाइज करोगे, उसको आप बताओगे एक कंक्लूजन में कि आपका फाइंडिंग्स जो था व्हाट वाज द फाइंडिंग. एंड देन यू कैन ऑब्वियसली जो फाइंडिंग्स आप लिखोगे, देन एज पर दैट फाइंडिंग you can correlate that with your concept, because आप जो भी लिख रहे हो that is for a paper or a research paper or a article, right. जो भी आप टॉपिक ले रहे हो तो यू कैन सी कि जो आपकी फाइंडिंग्स है वो उस कॉन्सेप्ट से कैसे आप इंटर रिलेट करोगे. दैट इज कंसेप्चुलाइजेशन. एनी डाउट्स इन दिस गाइस? रिसर्च डिजाइन में कोई डाउट्स है? समझ आया कि ऊपर से गया? समझ आया? इज इट क्लियर गाइस? Yes, ma'am.
Okay, Bharti. Baki guys, everyone else, you understood? Yes, ma'am. Okay, see, because this is important, research design थोड़ा important है guys, because आपका dissertation या जो भी आप लिखोगे ना उसमें बहुत ये चीज़ important रहेगी, या रिसर्च पेपर भी लिखोगे तो ये अगर नहीं समझ आया है, मैं आई एम रेडी टू मेक यू अंडरस्टैंड इट 5 times 6 times 7 times 10 times जितने भी बार चाहिए, बट जस्ट टेल मी, बिकॉज ये आपको समझना important है, ठीक है? So now moving to next slide. If you guys have not understood, अभी it's going to end like 2 slide बचा है, तो उसके बाद मुझसे पूछ लेना. Okay. LinkedIn ID and email ID. अच्छा, wait. See, this is my email ID and my LinkedIn is, wait, I'm just sharing it. This is my LinkedIn. Edlin, yes, darling, definitely you can get the PPT. I'll upload it in the course. You can see from there. So, guys, अगर आपको personally चाहिए तो message कर लो, भेज दूंगी, ठीक है? I have all the PPTs. If you cannot access it, I'll send you. But you can access it. You can access it from the legitimate course also. Okay. Meera Singh, please repeat. Meera, क्या you didn't understand the research design? Should you want me to repeat that? Ma'am, please explain last 2 points. Last two is verification of finding and conceptualization. Okay, fine. I'll repeat that. See, the thing is, verification. देखो, the thing is, आप जैसे आप समझ गए ना, UCC. I have taken the example of Uniform Civil Code. Okay, verification of finding basically हो गया कि हम जो जैसे compare करना, ठीक है? मैंने पहले वाला finding और अब वाले finding को compare करना हो गया verification of finding. उसमें basic ये है कि अब आपने कुछ भी like you have done the finding, for example on UCC there might be previous studies also, right? So you can just compare that ki there might be some finding which was done in 2018 and you are for example writing it for 2022, तो आपने 2021 में आपने करा होगा सर्वे, ओके? तो उसमें ये हो जाएगा कि डेफिनेटली यू कैन वेरीफाई इट. जो 2018 का है और 2021 का है उसमें बहुत डिफरेंस होगा, राइट? टेक्नोलॉजिकली इट विल बी डिफरेंट, द इफेक्ट्स वुड बी different. So you can see, you can verify the finding as per that. That is meant by verification of finding. Okay, to compare it basically, to verify it. Now the last part was conceptualization. See, conceptualization is basically conclusion where you have put your findings in the proper paper. आपने फाइंडिंग्स ले ली, आपने सर्वे ले लिया, अब उसको हम कंसेप्शुलाइज कैसे करेंगे? उसको हम कंसेप्शुलाइज तभी करेंगे जब हम जो हमारा फाइंडिंग्स है दैट वी आर रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट. What concept of law? For example, UCC, you have taken the survey, you have taken the questionnaires, right? Now you have to relate that questionnaire with your concept of law, which will be Uniform Civil Code. How you will draft, how you will make that in a proper paragraph, how you will basically show your conclusion, show your findings, क्या बोलते हैं, बेसिक हाउ यू विल पुट इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ विल यू पुट इट इन द प्रॉपर पैराग्राफ. That is conceptualization. Okay, Meera, is it clear? Meera, is it clear? Okay. Purnima is asking what is meant by analysis and interpretation of data. Analysis and interpretation of data, where is it? Oh, okay, last three. Okay, yeah, see, analysis and interpretation of data was basically about qualitative and quantitative, like I explained here. Basic The main point here is you are not analyzing the concept of law, right? You're analyzing the data. That is what is important here. You don't have to analyze what is the, like I said, in doctrinal you are analyzing the legal reasoning behind the concept of law or the legal interpretation behind the concept of law. That is not done here. You are basically analyzing
द टाइप ऑफ डेटा, फॉर यू हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, तो हम उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. ओके पूर्णिमा? Yes, ma'am. ओके, नाउ देखो बस खत्म हो गया गाइज, वी जस्ट हैव 2 स्लाइड्स मोर. ओके, जैसे ये तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च? क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, क्या दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एज ऑफ नाउ. बट आपको ये समझना है कि एम्पेरिकल में आप कैसे कर सकते हो. एम्पेरिकल आपका रिसर्च हो जाएगा सर्वे लेना, क्वेश्चनर लेना, इंटरव्यू लेना, ये सब हो जाएगा एम्पेरिकल रिसर्च में. ओके, then the last slide that we are talking about is basic difference between a doctrinal and empirical. ये हमारा difference का मैंने डाला है. see basically I have talked about it before. अभी जितना पूरा session हमने लिया है पूरा मैंने उसी पे बात करी है. ठीक है, this is basically I have just divided properly for your better analysis. Okay, इसमें लिखा है डॉक्ट्रिनल में कि emphasis on legal principle and empirical talks about lesser emphasis upon doctrines. Yes, why? Because doctrinal talks about theory, empirical talks about not theory. Empirical talks about experiments, about data, about statistics, right? So that is why doctrinal is emphasis more on legal principle and empirical is less emphasis on doctrines. Okay, then next is use traditional sources of data. Empirical says not solely depend on traditional or conventional sources of data. Traditional sources मतलब वही हो गया सी books और आपके traditional sources में books आता है, articles, research paper, तो वो सब because it is on theory. That is why you are using doctrinal. That is why it is ट्रेडिशनल सोर्सेज. एम्पेरिकल में बोल रहा है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल. यस, व्हाई? बिकॉज एम्पेरिकल में आपको घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकल के आपको सर्वे करना है, आपको इंटरव्यू करना है, आपको क्वेश्चन करना है. ओके, देन आता है एनी लॉ ट्रेन्ड पर्सन कैन डू डॉक्ट्रिनल रिसर्च. नॉन डॉक्ट्रिनल इन्वॉल्व पर्टिकुलर स्किल, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन. डेफिनेटली देखो डॉक्ट्रिनल में ये है कि कोई भी अभी बिकॉज वी आर लॉयर्स दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एनी लॉ ट्रेन्ड पर्सन, बट डॉक्ट्रिनल कैन बी डन बाय एनीबॉडी जिसको आपका नॉलेज हो, जिसमें आपका लीगल नॉलेज हो. फॉर एग्जाम्पल हम लॉ पे बात करें तो द पर्सन शुड बी लीगली ट्रेन्ड, द पर्सन शुड हैव द लीगल कंसेप्ट क्लियर, है ना. नॉलेज ऑफ लॉ शुड बी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड देन नॉन डॉक्ट्रिनल में पर्टिकुलर स्किल. वही है देखो सर्वे, यार सर्वे भी एक आर्ट होता है ना. हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमें वो ड्राफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, राइट. हाउ वुड यू ड्राफ्ट योर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे इवन इन सर्विस और interview or your questionnaire you have, see in questionnaire you have your open ended and close ended questions. So आपको पता होना चाहिए कि कैसे questions draft करने हैं, कैसे type of questions होने चाहिए. Okay, for that it involves particular skill, it involves conceptual framework, definitely it involves knowledge of other discipline. Knowledge of other discipline मतलब not the knowledge of law but the knowledge of your questions. How should you draft a question, कैसे आपके open ended questions कैसे होने चाहिए, close ended कैसे होने चाहिए, वो important है इसमें. Okay, then scholar seeks to answer one or two legal proposition or questions. Here it says non-doctrinal research involves number of question and large area. This is self-explanatory, I guess. Okay, यही है कि जैसे मैंने बोला था लीगल प्रोपोजिशन इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिनल रिसर्च में. तो उसमें जो आपका डॉक्ट्रिनल रिसर्च है वो या तो एक या दो या वट एवर द क्वेश्चन नंबर ऑफ लीगल प्रोपोजिशन इट कैन आंसर. बट इन एम्पेरिकल इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनर्स, इट इन्वॉल्व्स लार्जर एरिया. मतलब आपके घर से बाहर आप निकलोगे तो ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी सर्वे करोगे टॉक्स अबाउट दैट. ओके, then this is a theoretical study and it involves empirical field study. Like I told, field study empirical में बहुत important है ना. आप सर्वे करोगे तो आप आउट ऑफ योर होम जाओगे ना, तो वो फील्ड स्टडी हो गया, आप कहीं पे जाके कर रहे हो, दैट इज अ फील्ड स्टडी. बट एज ऑफ डॉक्ट्रिनल इट इज प्योरली थियोरी. ओके, इसमें कुछ भी नहीं समझ आया. पूरा कोर्स अभी आज मैंने जो पूरा पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट था आज. तो आप मुझे बताओ कुछ भी आपको नहीं समझ आया, आई विल make you understand again. Everything clear for today's class? Tell me that first. Yes, ma'am, clear. Okay, Surya. And what about others? Okay, or in general, how? Okay, now give me a proper response. How did you like the whole course?
How did you like my teaching? Because it was my first time also. So how did you like the whole course? Was the course nice, or was it boring, or was it okay? Ma'am, very interesting. Okay, thank you. Ma'am, your teaching style is very good. Thank you. ओके सो एक चीज बस एक हेल्प कर दो गाइज लेजिटिमेट इंडिया में जाओगे तो देर इज अ रिव्यू सेक्शन फॉर दिस कोर्स राइट यू गाइज वुड हैव सीन वहां पे थोड़े रिव्यूज डाल दो मैं ये पिछले कितने सेशन से बोल रही हूँ अभी तक एक रिव्यू नहीं देखा मैंने ठीक है तो आज तो डाल दो प्लीज ये ओके इट वाज ऑसम थैंक यू माइंड वेरी गुड थैंक यू सो मच ये जो यहाँ पे इतना अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे हो बस वही आपको रिव्यूज में जाके लिखना है थोड़ी मेहनत लगेगी है ना थोड़ी सी फॉर मी इफ यू कैन डू इट please do that and guys like I said this would be the last session I mean this is the last session so it was great teaching you guys I learned a lot from you I hope you learned a lot from me too what is the submission yes Debrita the submission is the 30 yeah see last week of August basically you can submit it at that date. Also, if you need time, more time, you can talk to Tushar or you can talk to the Legitimate India team. Which assignment, at least in your, I guess, group or the Legitimate India website, you've been given, you can write a article on any legal topic. Okay, so that is your assignment because I didn't give you any homework, any assignment. So all that you have to write any. You see, we are not imposing a particular topic on you. It is your choice. कोई भी topic ले लो, any topic you can take and write that assignment. Okay, because that assignment is important, guys. So where do we have to submit I guess you have to mail it to Tushar I'm not sure about that but you can ask about that by mailing them na legitimateindia@gmail.com is the mail yes you can publish these articles Edlin you can mail to Legitimate India and when you mail your article na you can specify them they can publish it in their Legitimate India site right so it will get published there don't worry please share today's PPT. Yes, Anjulika, I'll share today's PPT. It will be available in the Legitimate India course. And अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो you guys have my email ID right and you guys have my LinkedIn so message me I'll share it personally also if you want I'll share that but it will be available अगर नहीं होता तो आप मुझे बताना मैं आपको भेज दूंगी then today's recording will also be available okay so don't worry about that and please ma'am can you say some site where we can publish see like I said Legitimate India में भी publish कर सकते हो then you can publish it in if it is a article na you can start by getting it published in blog IP leaders right Legitimate India is the site you can go for or you can go for blog IP leaders you can also go for the journals like for example कोई particular field आप ले रहे हो तो उसमें you can go for the journals you can just go to Google and write UGC care list or UGC and Scopus index journals you will get a list of it जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको IPR में करना है तो वो आपको वहाँ पे यू हैव टू सर्च द फील्ड तो they'll tell you which journals are under the UGC for IPR तो उसमें you can publish it but like I said guys जो जर्नल्स होते हैं ना उनके ना डिफरेंट वो होते हैं क्या बोलते हैं साइटेशंस होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था ब्लू बुक हो जाएगा ऑस्कोला APA ये सब डिफरेंट होगा मैंने आपको ब्लू बुक के बारे में प्रॉपरली पढ़ा दिया है राइट तो आई डोंट थिंक आपको ब्लू बुक में कोई इशू होगा ओके सो जो जर्नल्स है जहाँ पे ब्लू बुक है like I said I shared a PDF also the link of the PDF for blue book citation so you can follow that format for the blue book citation and you can get your article research paper whatever you want to get published by following that format of citation and you have to check the proper structure that the journal wants है ना और जो भी आर्टिकल आप भेजोगे गाइस 3 से 4 बार प्रूफ रीड करना ओके जितने ज्यादा बार आप प्रूफ रीड करोगे उतना ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स और सब यू कैन एलिमिनेट दैट ऑल थिंग्स okay so that is very important
And like Anushri, you asked about the site. So वही blog I